Go Yes, to sir. internet and Yes, type sir. www.menti.com. You type Yes, करें. sir. Stan, can you do that? Stan from Holland. Open your smartphone. शफीकुल्ला साहब, डॉक्टर शफीकुल्ला साहब भी आज हमारे गेस्ट हैं सीएमएच कराची से जी. मेरी आवाज आ रही है अब्दुल्ला क्लियर? जी जी You सर can क्लियर hear आवाज me आ रही है, now? क्लियर आवाज आ रही है. ये किसी की आवाज सही नहीं आ रही, कोई आदमी बोलना चाह रहा है and his sound is not clear. Maybe you can mute him. Mr. Shahid, Yes, Mr. yes, Shahid, you Stan. can hear me? Okay. Yes, I can see you and hear you. Welcome. Okay, thank you. Now, ladies and gentlemen, welcome to the Netherlands. I have 2 years ago with Mr. Shahid Qureshi, your professor, walk in the Netherlands to a lot of entrepreneurs and entrepreneurs companies. It was very interesting, and it's very interesting what we learn from him and he maybe from us. Yes, I learned too. I learned a lot. I learned more. Thank you, thank you. It was a beautiful week, and first maybe I'm an expert of the PUM. It's an organization to help some companies and entrepreneurs to make a good start. My profession was publisher and printer, and you know the publishing is going from printing to digital, and you know printing going from printing to copy. This in my 40 years of work, the world completely changed, and I think the next in the technique, next 40 years, it will In the amazing meanwhile, what जितने happens हमारे in the दोस्त world. हैं, जी. Okay. I wish you in your entrepreneurs creativity, a lot success from the Netherlands, and maybe I come sometime to Karachi. Yes, Okay. you will be, inshallah, coming to Karachi. We will be very happy to host you, and we love you, and we think we can learn from each other. So we are doing a very interesting exercise, Stan. Can you see my screen? Yes. Everybody is typing in something, and Yes. they're asked a question to type, how do you define entrepreneurship? So you can write any word. So those people who will, अगर creativity का size बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग उसको लिख रहे हैं. तो अब्दुल जब्बार साहब, have you written something? Enter करना है. You just keep on entering. So people are defining entrepreneurship by, this is a very interesting tool, Stan. We use this tool. Everybody is entering this data from their smartphones. So if you have a smartphone, you can enter yourself. Do you have a smartphone with you? Yes, I have here a smartphone. Yeah, open the smartphone and open the internet. Open the internet. And yes. Open and write www.menti.com. You can see on the screen at the top. Okay. At the top, menti.com. And then use the code. So, you know, people are defining innovation, passion, courageous, proactiveness, hard work, consistency. So you have it will ask a code. Put the code 565923. At the top is the code 5659. 5923. 23. Okay. Now it's asking you a question. How do you define entrepreneurship? What is your word? What word do you like? You just type anything you like. I never heard from bird in hand. Okay, so you write bird in hand. And bird in hand, and I like that very much. To do great. To work with the materials, the technique, the people you have, not looking to the birds in the sky, but only to what you have, only what you have. That's what I think an entrepreneur, and he look to the trend, to the trendy in the future. Great. Can you write something so that it will come on the screen? No, I don't. It's too far away. That's too. Okay, so let's go to the next page, sir. I will go. So a lot of people, 62 people have filled in.
So the next question is, which city do you belong to? You have the city over here. On the Yeah, right side, you get Graven, Graven. Your city is there? Yes, Grave, yes, my city is there. Yeah, yes. Grave. Oh, grave. But we Grave, pronounce. Grave, that's my city. Oh Okay. my God, it's a very Saiwal, Turbat, Hub, Harunabad, Sialkot, Okay. Dubai, Geneva. 86. Next, go to the next question. Ji. The next question is, अगला सवाल जनाब ये है कि what is your education? BA, MA, MBA, PhD, MBBS, MS, whatever. What is your education? MBA. Art. Yes, right, MBA. So the size of the number indicates that more people are MBAs. The size, if there are more MBAs, the size will get bigger. So Janab, BBA is more now. BBA is at the top. BA, electrical, computer science, intermediate, A-level, FSC, MSc, FSC, A-level, intermediate, computer science, electrical engineering, FSC pre-engineering, and so there are like 81 people, intermediate, MPhil economics, and BSc honors. And so that is a very interesting figure. This is a ice-breaking exercise. Stan, Okay. this is the first day of the course, and we're trying to know each other. There are like 87 people have pulled in the data. So the next question is, why are you in this course? You want knowledge, you want networks, you want certificate. क्यों आए हैं अब्दुल रहमान साहब? Why did you join this course? IB का ठप्पा लगवाना है ताकि मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, रिश्ते अच्छे आ जाएं, क्या करवाना चाहते हैं आप? हाँ जी, लोगों पर रोब डालना चाहते हैं महल्ले के अंदर कि मैं IB में आ गया हूँ. क्यों आए हैं? Why are you in this course? Knowledge, information, to learn something, network, changed mindset. Why are you joining this course? Business understanding. Knowledge. Why? No, so most of the people want knowledge. Knowledge. Nobody wants a certificate. And rishta, wow, mashallah, rishta wale bhi aa gaye janab. Abdullah sahab, and great. So rishte ka size bhi bada ho raha hai. So inshallah marketability bhi badhegi aapki. You'll be more marketable at this course. Only 40 people. तस्कीन साहब मेरी आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. जी डॉक्टर शाहिद को मेरा इंटरनेट का मसला हो गया. मेरे ख्याल से डॉक्टर शाहिद का थोड़ा ड्रॉप हो गया. जो participants, अच्छा, he is back now, but the participants are requested to please write their answers on menti.com. Yeah, so there was a quick. So let me, Janab, inko share kar loon once again. Please carry on. There was a, unfortunately, but okay, we are back. So you can see the screen. Yes, Abdullah sir. Sahab, you Yes, can see the sir. Yes, sir. Yes, So sir. most of the people want knowledge. They're like, how many people? Yes, sir. 87 people have come up, 88, 88, 89 people have entered data. And most of the people want knowledge. Some people want certificates, some people more marketable, so that Stan, you're there, Stan? Stan साहब हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम मार्केट में भी हमारी वैल्यू बढ़ जाए. For me it was knowledge. Knowledge Oh, is very important. Okay. So some of the students want that they will get good marriage proposal after the course. So I think you do not have any issue like that. Stan, you understood Yes. my point? No, Some no, of the sorry. students want, some of the students are looking for good marriage proposals after the course. I think it's not your Good case. marriage. Which languages can you speak? Hindi, Balochi, German, French, Hollandish. Write the language you can speak, so we can understand each other, that how diverse our students are. Punjabi, French, Balochi, Shina, Persian, Pashto, Saraiki, Persian,
So the biggest is Punjabi, Urdu, English, Balochi, Potwari, Burki. Where is your language, Stan? We're waiting for you. Dutch. And Dutch. My Where language is is Dutch. And you can write any other, I think. If you know 3 languages, you can enter more. So Punjabi is emerging to be the most spoken language in this course. Punjabi, Urdu, Balochi, French, Arabic, Kashmiri, mashallah. Russian, somebody can speak Russian in this class. Marathi, Dutch. So that is a very interesting class. And we can, so like 88 people have entered data, 92 people have entered data. Arabic, German, Memni, Hinko, Romanian, basic. Ah, Dutch So also. wonderful. Yeah. Dutch also. So the next question is, how many countries have you visited in your life? So Stan, you must have a long list, 20, 30, I think. Yeah. 50. I think we have visited 50, more. I believe 50. Dubai, Romania. Please write there's no country called 103 na. Please don't write stupid things. Don't write stupid things. Write only sensible things. Saudi Arabia, Turkey, Iran, Iraq, Qatar. And and Pakistan is not an answer actually. Pakistan जवाब नहीं है इस सवाल का क्योंकि पाकिस्तान में तो आप बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान के अलावा लिखें अगर नहीं लिखे तो खामोश रहें तो नॉट चेट भी ना लिखें बस खामोश रह रहे हैं यार वो एक्सरसाइज जो है वो नॉर्वे अमान कतर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स so there are a lot of people in this course have visited. So Dubai is emerging to be Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Libya, Germany, and these are some interest. This talks about the diversity in our class. So let's move further because we are running out of time. Sri Lanka, and how can you add value to this course? Aap log, how can you help in this course? By sharing knowledge, experience, bringing in networks, bringing in guest speakers. Can you please tell? How can you add value to this course, the participants? How can they can share their experience, they can express ideas. Abdullah sahab, मैं पानी के ग्लास ले आऊँ एक मिनट. जी सर जी सर. आप लोग चैट में लिखने की बजाय ये स्मार्टफोन के जरिए मेंटीमीटर पर ही लिखें. ये चैट में लिखने का फायदा नहीं है. सर हम क्लास ही स्मार्टफोन से दे रहे हैं इसलिए. Great. So most of the people will be sharing their ideas, knowledge, and experience. And very good. So the next question is, this is the quiz. I hope everybody has seen the case. Roxanne Kumbi ki kahani suni hogi har ek ne. They were given a video to see, Stan, a video which I shared you today as well. This is a story of a US lady. Aap batayein ki kitni खूबियां थी. What were the characteristics of that lady, Roxanne Quimby? She was brave, courageous. Kya खूबियां थी? Write something about that lady which you saw in the video. जो वीडियो में देखा है उस खातून के resourceful, inventive, fearless. Wow, जबरदस्त. Excuse me, sir. Gee, wow. So 143 participants are, alhamdulillah, today with us. Zabardast. Next go to 49. Intelligent, courageous, brave, resourceful. This is the story of a lady, Stan, which was divorced. She had 2 kids. She was living in Boston, and she went to the jungle. She became a hippie, and she made one candle. She made 1 candle. She made 2 candles. And after 20 years, she was a billionaire, $1 billion lady. So you will see the case on the video which I given to you. And this is the story of Roxanne Quimby. The next question is,
What do you need to start a business? What do you need? You need money, building, equipment, training, technology. What do you think? I mean, An open mind. An open mind. Open mind. So write it. Ideas, willpower, mindset, encouragement, courage, money. Let's see which number comes. जो ज़्यादा repeat होता है उसका size enlarge हो जाता है, font size बड़ा हो जाता है. So idea is bigger because many people are writing idea. Money. I'm sorry, I have to go. I have to go now, Mr. Okay. Shahid. Thank you very much, and see you again. See you again. Thank you very much. I see you again. Okay. Goodbye. Bye. So what? Bye, do you everyone. need to have a good dinner. And thank you very much. Very good. So I will make Bye. you leave. Okay. तो जनाब इसमें what do you need to start? चलो मैं उर्दू बोल लूँगा. ठीक है जी. Thank you very much. तो जनाब passion, ideas, land, labor. लेकिन ये money जो है ना ये देखें गड़बड़ हो रहा है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं पैसा चाहिए. तो यही तो इस कोर्स में सिखाएंगे. मेमनपन. अरे जनाब पैसे वालों पैसे के बगैर काम. Where did she find the resources for her business? उसको कहाँ से मिला? उसको अपने कारोबार के लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिले? बैंक से मिले, जमीन से खजाना निकला, कहाँ से निकले? कम्युनिटी, ट्रैश, ड्रग स्टोर, सराउंडिंग, नेटवर्क, जंगल, कॉन्टैक्ट्स. चौंट है, बैंक से नहीं मिले प्यारे बच्चों. बैंक आपने लिख दिया है जो गलत आंसर है. हार्ड वर्क, जंगल, यूजलेस थिंग्स, drugstore, making friends, network, जबरदस्त, trash, community. Community top पे जा रहा है. Community is the trend है ना अब्दुल्ला साहब. This is the trend. Jungle, contacts, raw material. Jungle की spelling GIN, जिंगाल लिखे हैं. Very good English. Drugstore, and English भी ठीक होने वाली है हमारी. Woods. So very interesting. The next go to the next question. Time थोड़ा हमारे पास. I think ये आखिरी था गालिबन. Okay. तो जनाब let's go back. और जनाब अभी हम ये करेंगे. Welcome everybody. Thank you very much. तो जनाब chats के ऊपर कोई important चीज तो नहीं है अब्दुल्ला साहब? Okay. हाँ जी सर. नहीं सर, प्रोटीन की बात नहीं. बस एक सवाल आया. इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इफ यू शेयर सम एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान. बेटा सब्र कर लेना, अभी पहला दिन है. इतनी एग्जांपल्स पाकिस्तान से आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे. तो सब्र करते होते हैं. इतनी जल्दी ये क्वेश्चंस लिखने की आदत और बार बार पूछने की आदत भी बहुत अच्छी आदत नहीं है. ये हमें पीएचडी के दौरान सीखा कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, बार बार हाथ खड़ा कर देना, बार बार प्रोमिनेंट होना, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है. तो पाकिस्तान की इतनी कहानियां आएंगी प्यारे बच्चों साथियों. तो थोड़ा सा हमारे उस्ताद थे हेनरी मिन्सबर्ग, वो ये कहते थे कि ये ठहर कर रिफ्लेक्ट करके और धीरापन, रिफ्लेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्विक एंड फौरन सवाल पूछना. इसलिए कि आप जो है ना जल्दी सवाल पूछने से क्या फायदा होगा. आप सब्र करें थोड़ा सा. ठीक है जनाब. जी ये सैन पैकमैन, इनका नाम पता नहीं, ये नाम चेक करें ये कहाँ से आए हुए हैं. सैन पैकमैन, सैन पैकमैन साहब चेक करें कि आप कौन है. अपना नंबर अपना नाम ठीक कर लेंगे. ये नाम ठीक कर लें वरना आपको अभी जो है ना क्लास से रिमूव कर देंगे हमारी टीम. यू राइट योर नेम क्विकली, अदरवाइज यू विल बी आस्क्ड टू लीव. ठीक है जनाब. थैंक यू. तो जनाब अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. विल बी स्टडीइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग केस. रॉक्सैन कुंबी का जो केस है उसको हम दोबारा से गौर करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. और आप लोगों ने माशाल्लाह देखा भी है, तो हम उसको क्विकली देखेंगे. तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जनाब, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह हमें विजडम दे, हमें दानाई दे. तो जनाब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी. और आपको असली वीडियो भी मिल जाएगी रॉक्सैन साहबा की. जिनके लिए रॉक्सैन कहना मुश्किल है वो रुखसाना बाजी कह सकते हैं. तो रुखसाना साहबा जो हैं, शी वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, बॉस्टन में पैदा हुई. इनके जो वालिद साहब थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पढ़े हुए थे. HBS अमेरिका का टॉप का बिजनेस स्कूल है.
इनकी 2 बहनें थी। ये बचपन से ही इनकी तबीयत मुख्तलिफ थी और इनको कहते थे ब्लैक शीप। बिजनेस स्कूल से पढ़ी, शी वाज कॉल्ड ब्लैक शीप। और जनाब इसके बाद ये हुआ कि वालिद बचपन में एक ख़ास चीज़ जो होती थी कि इनके वालिद साहब जो छोटे मोटे काम देते थे ना, उसको ये किया करते थे और बचपन में ये चीज़ें बेचती थी। तो जनाब इसमें बताएं हमारे साथी कि बचपन में अनीला साहबा क्या कैसे ट्रेनिंग की थी इनके वालिद ने? अनीला चौधरी, आप माइक ऑन करके बताएं। मतलब आपने केस देखा होगा ना, इनके बचपन ने इनको क्या ट्रेन किया हुआ था? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज जो है ना वो। सारा ताहिर साहब आप बता सकते हैं? माइक ऑन कर लिया करें ना जी। वी हैव टू लर्न कि जब भी बात करनी हो माइक ऑन करें और थोड़ा सा एक्टिव चाहिए हमें लोग जी। आवाज नहीं आ रही आपकी भी, अनफॉर्चुनेटली। मेरी आवाज आ रही है जी अब्दुल रहमान साहब? जी सर, आपकी आ रही है सर, आ रही है। तो अब्दुल ताहिर साहब, अब्दुल रहमान साहब आप बताएं कि वालिद साहब ने क्या ट्रेन किया था इनको बचपन में? उनके वालिद साहब जो है ना वो तो चाहते थे कि ये बाकी बच्चों की तरह पढ़ें। जी, वो पढ़ तो रही थी लेकिन बचपन में ट्रेनिंग क्या कराते थे उनको? Can I volunteer? जी फरानाज साहब बताएं जरा। सर आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही जी आ रही। सर रोक्सैन कोइम्बी के फादर ने इस तरह से उनकी ट्रेनिंग की थी कि वो उनको टास्क दिया करते थे, छोटे छोटे घर के काम ना, ताकि उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हुई थी कि वो काम कर करके अचीव करने लगी थी। उनको हार्ड वर्किंग हो गई थी एक तो, और फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की गई थी कि वो इसलिए हार्ड वर्किंग बनी। और ऑन द अदर हैंड अगर पॉकेट मनी मांगती थी अपने बाबा से तो उनके बाबा क्या कहते थे? अगर $2 मांगती थी तो उनके वालिद क्या कहते थे? सर उनके फादर उनको तकरीबन जो याद नहीं आ रहा इस चीज का आंसर, बट उनके वालिद ये कहते थे कि बेटा $2 दे दूंगा लेकिन तुम $2 खुद बनाओ, $2 लेकर आओ, $2 मुझसे ले लो। $5 मांगते थे तो कहता 5 ले आओ तो 5 मुझसे ले लो। तो वो क्या करती थी, बचपन में हैंडीक्राफ्ट सिखाए गए थे, हैंडीक्राफ्ट और उसको सेल आउट करती थी जी। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि मेरा बचपन भी अमेरिका में गुजरा है, क्लास 3, 4, 5 में। हम स्कूल से आने के बाद अखबारें बेचता था, वालदा मेरी बेबी सिटिंग करती थी। ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो तरबियत है वो नाज नखरे से की गई है और ये बचपन में ये बेचना सिखाया जाता है। तो ये जो बचपन की चीजें थी जब ये बड़ी हुई और ये अपने वालिद से अलहदा चली गई और उन्होंने शादी कर ली अपने क्लास फेलो से, और वालिद से उनकी ना बनी और ये जंगल में जाकर टेंट में रहना शुरू कर दिया। और वहां उनके जब 2 बच्चे हो गए और वो 2 बच्चे हो गए और शोहर से उनकी ना बनी और वालिदगी हो गई, तो वो किस चीज ने उनको हौसला दिया कि वो अपने टेंट में चली गई? किस चीज ने हौसला दिया? किस चीज ने हिम्मत दी? किस चीज ने उनको वो करज दिया? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वो बचपन की ट्रेनिंग है। ये साहिबा, परवीन साहिबा, यू वांट टू ऐड समथिंग? हुंजा से मैं भी बताऊं? जी जी बच्चे बताइए। हाँ सर, वो उससे इस चीज ने किया कि वो जो आपने शेर पढ़ा था। हाँ जी बोलें साहिबा। जी हाँ, जो भी बोल रही थी वो बोले, प्लीज कंटिन्यू करें ताकि एक बात मुकम्मल हो जाए। जी, जो आपने एक शेर पढ़ा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, लाइक दिस थिंग गिव हर द मोटिवेशन। जी, और एनीबॉडी एल्स? उन्होंने इकबाल का शेर तो पढ़ा ही नहीं बेटा, वो तो हमने पढ़ा है। तो रॉक्सैन बाजी को तो उर्दू आती ही नहीं पढ़नी। अनीला साहबा कुछ कहना चाह रही? जी सर, मैं फातिमा। नीला साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है, वो माइक ऑन हो जाता है लेकिन वो आवाज नहीं आती जी। सर कैन आई से समथिंग? जी बताइए।
जी सर, बचपन से उनको ट्रेन किया गया था हाउ टू अर्न मोर मनी हरसेल्फ। जैसा हमारी सोसाइटी है ना, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन उनको बचपन से कहा गया था कि इफ वी आर गिविंग यू $2 तो आपने 2 ही लेके आने हैं। दैट शी कुड क्रिएट मोर मनी बाय यूजिंग her क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो और दिस इसके इज अलावा व्हाई शी इज। शाबाश, और बच्चों को स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, मेहनत जी भी सिखाई बिल्कुल जाती है, पैदल बिल्कुल चलना, वो। स्विमिंग, जी सर। राइडिंग, ड्राइविंग। तो अभी मैं जर्मनी में पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी सेक्रेटरी हैं फ्रा एलेक्जेंड्रा, तो वो मैं एक दफा गया तो उन्होंने कहा कि शायद साहब तुम आओगे ना तो मैं नहीं होंगी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं बाइसिकलिंग करते हुए म्यूनिख से मैं बर्लिन जाऊंगी हैम्बर्ग। ये 1000 किलोमीटर का फासला साइकिल पर तय करेंगी, और साइकिल के पीछे टेंट लग रखा होगा, और वो टेंट लगाते हुए या होटल्स में ठहरती हुई जाएंगी। और अलेक्जेंड्रा साहबा की उम्र पता कितनी है शहरयार साहब कोयटा से? 60 इयर्स ओल्ड। दादी अम्मा है वो। एक दादी अम्मा के मसल्स इतने स्ट्रांग हैं, और हमारी 20 साल के बच्चियों के मसल्स इतने वीक हैं। हम कराची यूनिवर्सिटी में वो थोड़ी दूर चलना पड़ता है, आधा फरलांग लिफ्ट मांग रहे होते हैं बच्चे। थक गए, कमर दर्द, सर दर्द। सर आप बिल्कुल सही Excuse कह me, रहे हैं। sir. सर जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया था ना, तो उधर भी यही कॉन्सेप्ट दे यूज्ड टू से, मैंने कहा दिस प्लेस इज हाउ फार अवे, दे यूज्ड टू से इट इज लाइक 5 मिनट्स वॉक, और ट्रस्ट मी इट यूज्ड टू टेक मी लाइक 10 to 15 मिनट्स टू रीच देयर। तो उधर भी सर जी वॉकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, मतलब यू हैव टू वॉक शाबाश। योरसेल्फ। नेक्स्ट जनाब, और कोई कमेंट करना चाह रहा था? अब्दुल्ला साहब, आप साइमा साहब कुछ कहना चाह रही हैं? BG10 गिलगत। सर वो अनम्यूट हो गई हैं। शी इज अनम्यूटेड। हो गई हैं, कर दी मैंने। साइमा साहब आप सर अनम्यूट हैं, बोले। मुझे कुछ कहना है। जी सर ये 1 by 1 अगर हो जाए तो अच्छा है। ये मुझे नजर नहीं आ रही, हमारी टीम को करना अच्छा पड़ेगा, यहाँ पे अब्दुल्ला को करना सर पड़ेगा इसमें कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो मैं कोई छोटी पहाड़ की चोटी पे आके ना क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो शायद मेरा फेस विजिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं जी, आप बोलिए। तो इसमें ये है कि जो रोक्सन को जो ट्रेनिंग मिली थी बचपन में, एक तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया था और उनको अर्निंग सिखाए थे उसी एज से, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करके इनकम कमाना है, ये उनको सिखाए थे। माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन सर? भाइयों जी सर इनकी जो 2 बेटियां हैं ना, इन्हें मोटिवेट किया। अगर ये 2 बेटियां ना होती तो शायद वो उसी जंगल में उसी हस्बैंड के साथ थे, लेकिन इनकी फ्यूचर की वजह से ये आ गए यहाँ पर। नीड बेटे हैं दोनों, बेटे नीड। जरूरत भी इंसान को बहादुर बनाती है। शाबाश। तो जनाब ये खातून बहादुर थी, वो गई टेंट लगा लिया। अब रुक जाएं, सवाल थोड़ी देर ठहर जाएं। वो टेंट लगा लिया। ये वही खातून है नाजो नाम की पली हुई, वालिद हार्वर्ड का ग्रेजुएट, लेकिन मेहनत मुशक्कत पर तैयार थी। टेंट लगाया, लकड़ियां ली, आग लगाई, और काम भी करना शुरू कर दिया। और वो जनाब इस तरह जिंदगी गुजरने शुरू हो गई। वो जंगल में लकड़ियां काटने जाती थी। कहानी में तेज करूंगा, डिटेल कहानी तो उसमें आ चुकी है ना वीडियो में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं बस। तो वो जनाब यहाँ गई जंगल में बाबा जी नजर पड़े। उनका वाओ आप कौन है? उनका मैं न्यूयॉर्क का फोटोग्राफर हूँ। वहां पर वो शहद निकाल रहे थे। उसने कहा कि सर मुझे भी सिखा दें। तो शहद का काम सीखना शुरू कर दिया। और एक दिन वहां पर उनकी नजर यहाँ पर ये वैक्स पे पड़ी। इस वैक्स पे नजर पड़ी तो उनको अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में अपने वालिद के छोटे छोटे कामों में कैंडल भी बनाई थी। तो उनका बर्ड सर अगर आप मुझे वैक्स दे दें तो मैं कैंडल बना दूंगा। तो उनको वैक्स दे देंगे। तो हम MBA के बच्चों से पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो फालतू चीज है ना, ये तो फालतू है, रद्दी चीज है। तो बर्ड साहब ने कहा लो लो बेटा ये ले लो। इन्होंने इसको पिघलाया, साफ किया। ये कैंडल बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? आमिर अजीज साहब को आदमी, अब्दुल्ला साहब किसी से पूछ लें भाई, जिनका स्पीकर जल्दी ऑन हो जाए। जी सर, अब्दुलरहमान साहब ऊपर है। ये आतिका, हाउ मच मनी विल इट टेक टू मेक अ कैंडल? अबूजर खान ऑन है। सर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे सर, सिर्फ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी लगी है। जी आतिका से भी पूछ लेता हूँ। जी आतिका।
सर हार्ड वर्क और थॉट और आपके जो आपकी स्किल्स है वो लगी थी। एक धागा चाहिए था, बस धागा लिया बना दिया। और वो मेले में गई लेकर, तो वहां पर वो फौरन बिक गई। अफसा शाहिद साहबा वो क्यों बिकी? इसलिए कि बताएं। इससे एक और भी मॉरल ऑफ स्टोरी बड़ा अच्छा निकलता है कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग। अब वो जो चीज थी वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन थी उन्होंने उसको कैंडल्स में चेंज कर दिया। आगे चलते हैं, बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है। तो जनाब वो कैंडल्स लेकर गई और वो बाजार में बिक गई कि वो बाबा जी की असल तस्वीर है। बाबा जी डाइड लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो। साहिमा साहबा भी हाथ नीचे कर दें आप, क्योंकि अभी मैं सवाल नहीं लूंगा थोड़ी देर। उसके बाद ये हुआ कि 1984 में जब कैंडल्स बिकने लगे तो रॉक्सन ने बर्ट से कहा, सर ये दुकान चल पड़ा तो हम कंपनी क्यों ना खोलें। तो दोनों ने 200 जमा $200 इकट्ठे किए और ये पाकिस्तानी बन जाते हैं 4000 रुपए उस जमाने के। 4000 रुपए से कारोबार शुरू किया। अब उसके लिए कारोबार शुरू करने के लिए आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था, तो लोगों ने कहा जगह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ये सारी लिस्ट बना दी। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट बनाते हैं हमारे शहजादे MBA वाले। जो MBA वाले और BBA वाले ने, इनको मैं शहजादे कहता हूँ, प्रिंसेस, ये बादशाह लोग हैं। ये जो है ना, जब तक ये चीजें ना हो महंगी वाली, ये काम नहीं करते। तो MBA और BBA वाले, हार्वर्ड मॉडल वाले जो लोग हैं, ये क्या कहेंगे, हमें ये चाहिए, फिर हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रॉक्सन गुम्बी साहबा ने तो कौन सी ऐनक पहनी हुई है? 2 किस्म की ऐनक है। आपने देखी है ऐनक? एक घोड़े वाली ऐनक देखी है अहमद साहब, जो घोड़े को पहनाते हैं? एक घोड़ा होता है ना, ये घोड़ा का मुंह है, दिस इज हॉर्स। तो घोड़े की जो आंखें होती हैं उसके आगे एक पर्दा देखा आपने? पर्दा सा पहनाते हैं। यस सर। देखा आपने? वीडियो में देखा, हमारी पहली वीडियोस में? यस सर। अहमद जी सर देखा। वो पर्दा क्यों पहनाते हैं घोड़े को? ताकि वो सीधी डायरेक्शन में देखे, इधर उधर ना जाए, अपनी डायरेक्शन से मूव ना करे। एग्जैक्टली, ताकि वो गुलाम बन जाए, ताकि वो सोचे भी तो महदूद सोचे, ठीक है, लिमिटेड सोचे, उसका फोकस भी वही हो। और जी, तो इसके मुकाबले में एक ऐनक है जिसको मेमन ऐनक कहते हैं, चिनौटी ऐनक कहते हैं। बेटा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी सिग्नल्स ठीक नहीं है। इसके मुकाबले में एक ऐनक है, ये देख रहे हैं ऐनक, नजर आ रही है? माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। ये है ऐनक। यस सर। ये एंटरप्रेन्योरियल ऐनक है। इस ऐनक में छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब्दुर्रहमान साहब, 5 रुपए, पुराना साइकिल, पुराना टायर ट्यूब, पुरानी सिलाई मशीन। तो रॉक्सन को MB साहबा की जो ऐनक है वो डिफरेंट है। तो रॉक्सन को MB साहबा क्या करेंगी, वो कहेंगी ये इतने पैसे मेरे पास $400 हैं। और जो चिन्योटी एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनका असूल पता है क्या है? उनका असूल ये है कि $400 होना तो 20% से ज्यादा खर्च नहीं करना। 400 का 20% बन जाता है $80। $80 खर्च करने हैं, 320 को छेड़ना भी नहीं है, उसको संभाल कर रखना है। $80 के अंदर काम करना है 20% में। तो 20% में MBA वाले, BBA वाले पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो शाह खर्च हैं, उनको ऐनक लगी हुई है दूसरी, ठीक है जी, उनको लगी हुई ऐनक दूसरी। तो अब इनको तो ऐनक लगी हुई थी मेमनपन की, तो इनको जगह चाहिए थी, इनको पुराना घर नजर आ गया। उस पुराने घर में खिड़कियां भी टूटी हुई थी। उसने कहा कि साल का $150 लेंगे, आप 1 साल बाद भले हमें पैसे दे दीजिए। उनका वाह कमाल हो गया। उनका जी हमें बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए। कबाड़ खाने से कबाड़ में चली गई पुरानी मार्केट में, ये $30-40 का चूल्हा ले आई पुराना। उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जंगल से मिल गया, ये जंगल से मिल गया। उनको जनाब ट्रक चाहिए था,
माहिन साहब अभी थोड़ी देर ठहर जाए, मैं सवाल लूंगा, थोड़ी देर ठहर जाए। उनको ट्रक चाहिए था, वो जनाब उन्होंने बर्ड से ले लिया, उधार ट्रक ले लिया। उनको टेलीफोन चाहिए था, उन्होंने वहां ड्रग स्टोर से ले लिया। तो अब ये देखें ना, अगर रॉक्सैन कुंबी साहिबा ने MBA किया होता ना, वो भी लम्स IB हार्वर्ड से, तो मसला खड़ा हो जाता। क्या ख्याल है सर अब्दुर्रहमान साहब? अगर MBA किया होता ये सोचती? नहीं बिल्कुल ना सर। वो कहती दफ्तर चाहिए, नया ट्रक निकलवाओ, नया ट्रक, नया गाड़ी, नया दफ्तर, कारपेट। एंड मुझे तो जनाब उसको एम्प्लॉइज चाहिए थे। एम्प्लॉइज कहाँ से मिलेंगे? मोहल्ले में कुछ ख्वातीन बेवा थी, उनको कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो इस तरह ये काम शुरू हो गया, और ये काम चलते चलते इनका बढ़ना शुरू हो गया। तो रॉक्सैन कुंबी साहबा कैंडल बिकने लगी। जब वो कैंडल बेचने जाती थी, अरूज साहबा आता हूँ आपकी तरफ, जब कैंडल बेचने जाती थी तो वहाँ बच्चों के कपड़े बिक रहे थे। तो एक माँ ने, जो आर्टिस्ट भी है और माँ, बच्चों की माँ भी है, उसने जब उन कपड़ों को देखा तो उसने क्या कहा? उसने कहा इसकी स्टिचिंग ही अच्छी नहीं हुई, ये तो मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ। जी अरूज साहबा बताएं क्या ख्याल पैदा हुआ? आयशा अरूज, आपके हाथ खड़ा था ना जी। क्या ख्याल पैदा हुआ होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ? शुमाइला नाज साहिबा सिंध से। जी सर, उसके जी अनम्यूट सर। अब हेलो, बोलें, अब बोलें। जी बोलें। जी, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो इससे बेहतर कपड़े बना सकती हूँ। तो फिर ये घर गई, फिर उन्होंने सोचा कि अब सिलाई मशीन तो मेरे पास है ही नहीं। सिलाई मशीन देने का, ये सिलाई मशीन चाहिए थी। अब सिलाई हाँ। मशीन मिलती है $100 की, फॉर एग्जांपल अमेरिका की, $50 की कोरिया की, और $30 की फॉर एग्जांपल चाइना की। तो जनाब कौन सी लेंगे? जो MBA वाले लोग हैं वो कौन सी लेंगे? सर $100 वाली। सर कोई भी नहीं लेंगे। और जो मेमन है, जेन्युइटी एंटरप्रेन्योर, वो क्या कहेंगे? सर नहीं लेंगे, कोई भी वाली नहीं लेंगे। वो सर नहीं लेंगे, वो वैसे काम चलाने की कोशिश करेंगे या किराए पे लेंगे। किसी से बोरो कर लेंगे। सर वो हैंड स्टिचिंग करेंगे, वो हैंड स्टिचिंग करेंगे। हैंड स्टिचिंग में टाइम बहुत लग जाएगा ना, थोड़े बना सकते, डिपेंड करता किसी से बोरो करेंगे। तो सर बोरो करेंगे या फिर सेकंड हैंड यूज भी परचेज कर सकते हैं आई गेस। नहीं सर, वो जो है ना वो जाया करती थी एक इलाके में, और वहाँ पर कुछ लोगों के साथ कुछ ख्वाजा की गपशप हो गई थी, तो वो वहाँ पे गई तो उसने उनसे उधार ले ली कुछ अरसे के लिए। हाँ, वहाँ पर कुछ औरतें थी, गांव से बाहर, वो बैठी होती थी और बच्चों को खिला रही होती थी, और कुछ औरतें सिलाई मशीन से कपड़े सी रही होती थी। तो वो रोजाना उनसे सलाम दुआ होती थी, सलाम बाजी, आपा बाजी। इसके इम्पोर्टेंट ये होता है मेरे प्यारे भाई बच्चों, कि हम मुस्कुराहट रखें अपने चेहरे पर, और हमें अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से सलाम करने का फन आता हो, हमें मुस्कुराना आता हो। तो जब उनको ख्याल आया कि वो फलां बाजी के पास है, तो फराह खान साहबा, अगर वो आपके पास रॉक्सैन आए और आपसे कहे कि बाजी वो जरा अपनी मशीन तो दो दिनों के लिए, आप दे देंगे अपनी मशीन इनको 2 दिनों के लिए? सर अगर अच्छे रिलेशंस होंगे तो मैं दे दूंगी, अगर समहाउ नो हाउ नहीं होती या रेफर कह रहा था तो फिर मैं उसको बोलूंगी कि यू हैव टू गिव मी समथिंग इफ यू आर कीपिंग माय एसेट फॉर टुडे। लेकिन आप उनको 1 साल से जानती हैं, तो 1 साल से जानने वाला, खैरियत पूछती हैं, गुजरती हैं, एक दूसरे को जानती हैं। तो किरण शेख साहबा कुछ कहना चाह रही हैं? किरण शेख। जी सर, मैं यही कह रही थी कि वो ऑब्वियसली बोरो कर लेंगी, और या सेकंड हैंड हम ले लेते हैं। बीइंग MBA तो हमारी ये कोशिश होती है, या BBA, कि हम जो है वो महंगी से महंगी आइटम खरीदें ताकि जो है वो हमारा आउटपुट भी अच्छा निकले। लेकिन अगर हम मेमन नेचर के होंगे तो हमारी कोशिश होगी उधार मिल जाए, पड़ोसी से मिल जाए, यानी कि फिटकरी लगे ना। जो एक और आप स्टेट बोलते हैं, ये खरीदने का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आता है मैम। पहले तो अम्मी, खाला, दादी, नाना, बहनें, नंद, सास, पहले तो इधर आएंगे ना, उसके बाद अगली जी।
बिल्कुल सर, यानी कि हम ये कोशिश करेंगे इर्द गिर्द हमें किसी से भी मिल जाए, किसी से जान पहचान इसी बारे में हमें पता चल जाए कि जनाब इसके घर मशीन है, हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ जाएं, जान पहचान बनाएं 2-4 दिन और उससे फिर हम जो है वो बोरो कर लें। मेरे ख्याल में तो यही सबसे सेंसिबल तरीका होता है। और इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अखलाक चाहिए, उसके लिए मोहब्बत चाहिए, बिल्कुल उसके सर, लिए नरमी चाहिए, उसके लिए तबीयत में बिल्कुल सर, खुशगवार चाहिए, उसके लिए आर्जी चाहिए। और ये चीजें हमारे किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा रही मेरी बहन, कि किसी कॉलेज में, स्कूल में, मोहल्ले में नहीं सिखाई जा रही। नंबर पे नंबर, रट्टे पे रट्टा, ग्रेड पे ग्रेड सिखाया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जनाब सर वहां से एक्चुअली मसला ये सर जिससे आप बोरो कर रहे हो उसमें तो जेनरोसिटी भी होनी चाहिए ना बेटा, वो तो होती है इंसान में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप बदतमीज हैं, मुंह फट हैं, तो कोई भी आपसे जेनरोसिटी नहीं करना चाहेगा। आप मुंह फटना है, आप खुशगवार बन जाएं तो सब अच्छे बन जाएंगे इंशाल्लाह। देखिएगा जब इंसान खुद अच्छा बनता है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला अपने गैबी निज़ाम से सारी चीजें काम कर देते हैं। अब हम यही कह सकते हैं ना सर कि it all depends upon the relations you have with the other person. It all depends on you बेटा। सर अगला बंदा भी तो बिजनेस माइंडेड हो सकता है। बच्चे इतने लोग, इंसान जो है ना बिजनेस माइंडेड बहुत बाद में आता है। सबसे पहले अंदर का एक इंसान, अंदर का सर इंसान एक्चुअली वो मोहब्बत, हमदर्दी, खिदमत चाहता है। अंदर का इंसान, ये हम पैसे के लिए पैदा थोड़े हुए हैं, वो बहुत बात की बात है। वो हमने, चूंकि हमारी एजुकेशन ने हमारे माइंड को इतना करप्ट कर दिया है कि हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है, हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि पैसे के बगैर कोई काम कर सकता है। अभी आपको इतनी कहानियां सुनाएंगे कि इंसान, ये पैसा बहुत छोटी चीज है मेरे बच्चों, मेरे साथियों। तो अभी हमारी बात सुने इंशाल्लाह, बाद में आपको बताएंगे कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, इनका माइंड करप्ट हो जाता है। इसलिए मैं अनलर्निंग हो रही है मेरी। मैंने लम से MBA किया, मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने MSc की, फिर PhD की। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा ना, उतनी अनलर्निंग करनी पड़ेगी। जिसके D ग्रेड आए हैं, जो जितना फेल आया ना, वो मुझसे मुबारक ले ले, उसको उतने ज्यादा मुबारक। जो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 25 साल 26 साल से पढ़ रहा हूँ, तो हमारी पढ़ाई के अंदर गड़बड़ हो चुकी है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जनाब रॉक्सन कुंबी साहबा ने कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए, बर्ड हाउसेस भी बनाने शुरू कर दिए। और फिर एक दफा रॉक्सन कुंबी साहबा को ने, एक दिन वो सर्दियां थी, और सर्दियों में क्या हुआ, कि वो जनाब वो कैंडल बना रही थी, होंठ फटे हुए थे, इनका हाथ उनके लिप को लगा। उसने कहा लिप बाम का आइडिया आ गया। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं ज़ैनिश करीम साहबा? वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम? सर पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं, और आपके सराउंडिंग में जो भी चल रहा है सराउंडिंग से आपको आइडियाज मिलते हैं। फराह खान साहब कहाँ से आते हैं आइडियाज? कराची से। सर ऑब्जर्वेशन से आते हैं मोस्टली। अगर आप गुड ऑब्जर्वर तो बहुत सारे आइडियाज आपको अपने आसपास से बहुत मिल जाएंगे। रीडिंग से आते हैं, जरूरत की आइडिया क्रिएट करती है। नीड से आते हैं, ट्रैवल से आते हैं, ट्रैवलिंग करने से। सर मैं से समथिंग जी सर, आइडियाज आपकी प्रॉब्लम से भी आते हैं। जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, आप उसका सलूशन फाइंड आउट करते हुए, एक प्रॉब्लम का जो सलूशन आप फाइंड आउट करोगे, तो आप एक नया आइडिया जनरेट कर दोगे अपने माइंडसेट से। जी, प्रॉब्लम ख्वाब में भी आते हैं बाज़ आइडियाज। कई आइडियाज ख्वाब में आ गए अचानक, कई आइडियाज तुक्के से आ गए, अचानक आ गए। एक काम करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ गया, गलती हो गई एक्सपेरिमेंट में, उस गलती में एक नया आइडिया आ गया। सर इमेजिनेशन भी जरूरी होती है आइडियाज के लिए। क्या जरूरी होती है? इमेजिनेशन सर, इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। बस ये सारी वजूहात है, मिलके होता है। सर फेलियर से भी आता है। अगर आप कोई फेलियर फेस करते हो, फेलियर से भी आपको आइडियाज जनरेट होते हैं कि मैं किस वजह से फेल हुआ। फेलियर से आते हैं, ट्रैवल से आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने से आते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को मिलने से। इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है सर कि आपके पैशन से आते हैं, हॉबी से आते हैं, छोटों से आते हैं, बड़ों से आते हैं। सर आप कितने डाइवर्स माहौल में रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितने आप डाइवर्स माहौल में रहेंगे, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। डाइवर्स लोगों से आते हैं। जी सर। रॉक्सन कुंबी, सुनिए जरा, रॉक्सन कुंबी साहबा ने कहा वाओ लिप बाम। उन्होंने जनाब बाजार गई हुई थी चीजें खरीदने, वहां पर उन्होंने किताब खरीद ली, वापसी पर पुरानी किताब
चलो थोड़ी देर पढ़ लूंगी। अल्लाह की शान देखें, जब उन घर आई किताब खोली तो उस किताब का जो सफ़ा खोला है ना, वहां पे पता फरा साहबा क्या लिखा हुआ था? लिप बाम बनाने की रेसिपी लिखी हुई थी। इतना बड़ा तुक्का लग सकता है वैसे? सर अगर किस्मत से लग सकता है तो हो सकता है। हाँ जी सर, समटाइम्स ये होता है ना कि बंदे का जो है वो जब इनोवेटिव इनिशिएटिव हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी मदद कर रहा होता है। तो मैडम के साथ भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही था कि वो इनिशिएटिव यानी थी, वो किताब इनोवेटिव खोली, थी। फरा साहब देखें, अल्लाह की ताकत देखें, किताब खोली तो वो सफ़ा खुल गया और उस सफ़े पे वो रेसिपी लिखी थी। फ्राइंग पैन लिया, उसके अंदर उन्होंने वो पेपरमिंट डाली और वो लिप बाम बनी और वो बिकनी शुरू हो गई। इतने लोग आए, रश पड़ गया। न्यूयॉर्क से एक आदमी आया, लेके चला गया और 10 दिन बाद वापस आया और वो रुखसाना बाजी को तलाश कर रहा है। कहाँ है बाजी? वो पता चला बाजी तो गांव में नहीं रहती, वो जंगल में रहती हैं। वो जंगल में पहुंचा, जाकर गिला किया, बाजी आपके पास टेलीफोन ही नहीं है, हम आपको ऑर्डर कैसे दिया करें? तो बाजी ने क्या किया होगा बताओ? हाँ जी, सारी 140 लोग, 136 लोग, बताओ रुखसाना बाजी क्या करेंगी? सर उन्होंने स्टोर वाले से उन्होंने कांटेक्ट किया। किससे कांटेक्ट किया? स्टोर वाले से। ड्रग स्टोर वाले से। तो ड्रग स्टोर वाला मुफ्त काम करेगा? राबिया खान साहब, राबिया कराची से, आप मास्क लगा कर बैठी हुई हैं। हाँ जी 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 अच्छा जी, वो नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने उनको बोला कि मैं आपसे जो है चीजें लेती हूँ तो आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं सलीका चाहिए बात करने का, हमें बात करने का सलीका चाहिए। मैं जब भी अपने एमबीए के लोगों से पूछता हूँ ना, आयशा अरूज, जब भी पूछता हूँ कि बताओ कैन यू कन्विंस, तो कहते नहीं कर सकते, उसको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देकर काम होते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि यार छोटे शहर में, गांव में इनको ताल्लुक भी होता है, हर चीज पैसे से नहीं होती। जी जी बिल्कुल। और उसको जब वो कहेगा कि कैसे बात कहेगा ना, मेरे भाई, प्यारे भाईजान, हम लोगों ने एक काम शुरू किया है, मैं पाकिस्तान की अपने इलाके की औरतों को हेल्प कर रही हूँ और जनाब मेरे टेलीफोन ले लिया करोगी हफ्ते में 2-4। तो जो आदमी इतना भी ना कर लेना, उसको इंसान कहना मुश्किल है मेरे साथी। तो हमारे शायर मशरक पता क्या कहते थे? वो कहते थे औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है। और उर्दू भी थोड़ी सी सीख लो मेरे साथियों। औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्द मन का तर्ज़े कलाम और है। कि जब आदमी अपने जुनून में, अपने काम में डूबा हुआ हो, तो वो फिर जो है ना वो लैंग्वेज का। तो जनाब मेरे साथियों, ये हुआ कि ख्वातीन को एंगेज कर लिया। तो ये आप ये देखें, ये हमारी जो बहनें बेटियां हैं इस वक्त, राबिया साहबा, आपने कभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर किसी दाढ़ी वाले बाबा जी की तस्वीर देखी है? नो। तो ख्वातीन ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसमें दाढ़ी वाला बाबा जी बने हों? नो सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल जी। नहीं। तो जनाब ये कंपनी चली, बाबा जी की तस्वीर चली, बाबा जी की दाढ़ी कामयाब हो गई और ये $1 बिलियन की कंपनी बन गई। ये देखे उल्टा हो सर, ये गया। मुझे बात समझ नहीं आई कि बाबा जी की तस्वीर को देखकर जो है वो लेडीज ने जो है वो कॉस्मेटिक्स खरीद कैसे लिया? हाँ जी, यही तो शेर सुने ना, क्वालिटी मैटर्स। सर शेर सुने इकबाल का ना, दोबारा सुने। औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है। दूसरे बातें करते हैं, मेरी बात मुख्तलिफ है, इश्क के दर्द मन का तर्ज़े कलाम और है। जो आदमी मोहब्बत और खलूस से बात करेगा ना, उसकी बात डिफरेंट हो जाती है। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स वाले हैं, अगर चीज़ें जाली हों, ऊपर अमेरिकन इंडियन मॉडल्स की तस्वीरें लगा दें, एक दफ़ा चीज़ खरीदेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं खरीदेंगे। जो सच है ना, सच, ये एंटरप्रेन्योरशिप का सबका अव्वल है। अरे सच, सच्चाई और इखलास और प्योरिटी और मोहब्बत और हमदर्दी और खैर खाही वाली चीज़ हमेशा कामयाब हो जाती है। वो इंडियन और पाकिस्तानी मॉडल्स की मोहताज नहीं है, वो जनाब किसी छिछोरापन की मोहताज नहीं है।
सच सच है, झूठ झूठ है। तो जनाब इस तरह ये कामयाब हो गई। और ये जो कंपनी थी इनकी 44 एम्प्लॉइज थी। अच्छा जनाब इस तरह हुआ है कि हमारा 1 घंटा खत्म हो गया है। तो जिन लोगों ने अपने वादे किए हुए खाने के, कहीं जाने के, क्वालिटी भी तो काफी मैटर करती है ना। क्वालिटी ही मैटर करती है बच्चे। तो जिन लोगों ने 1 मिनट, जिन्होंने हम आधा घंटा एक्स्ट्रा लेंगे, तो जिन लोगों ने टाइम लिया हुआ है तो प्लीज वादे को पूरा करके वो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं। तो जो लोग मोहब्बत और शौक में और उनके वालिद नाराज नहीं हो रहे पेरेंट्स, तो वो कंटिन्यू कर लें आधा घंटा, ताकि हम वैसे ही चीज़ें रिकॉर्ड भी होगी और रिकॉर्डेड सेशन भी इंशाल्लाह हमारी टीम आपको दे देगी। अच्छा जी जनाब, थोड़ी सी कहानी मुकम्मल करने दें फिर आगे चलेंगे। तो वो कहानी जो 93 में शुरू हुई थी एक जंगल से, और वो जनाब 93 में इनके पास $8 लाख थे और इनके पास सिर्फ अनकलेक्टेड उनकी चीजें सारी बिक गई थी, सवाई 2,500 का कर्जा लोगों के जिम्मे था जो लोगों ने देना था। और 1997 में इनकी कंपनी 80% बिक गई। और उसके बाद ये इनकी प्रोडक्ट्स देखें, ये मेरे पास असल डब्बा मैंने ख़रीदा था अमेरिका से, ये मेरे पास पड़ा हुआ है दफ्तर में आई थिंक। और ये देखें तो मेरे प्यारे साथियों, आयशा अरूज साहिबा और बाकी हफ्सा और जितने भी लोग हैं, मैं बाकियों को देख नहीं पा रहा या मैं नीचे करना पड़ेगा स्क्रीन। मुबशर साहब हैं, इमरान कलीम साहब हैं, और जनाब ये हमारे बहावलपुर से थी। जी सर। बहावलपुर से कौन है? जी सुसान साहबा, जी जनाब। और उसके बाद जनाब अब्दुल मजीद साहब और अली हमजा, लॉट ऑफ पीपल, हर एक का दिल करता नाम लूं, अब टाइम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ MBA वालों, BBA वालों, इन्होंने कैंडल लिए जंगल से, वैक्स लिया, लकड़ियाँ ली, एक बाबा जी लिए जंगल से, कुछ ख्वातीन ली गांव से, पुराना चूल्हा लिया, पुराना ट्रक लिया, पुराना टेलीफोन लिया, पुरानी सिलाई मशीन, पुरानी आरी, एक टेंट। अगर मैं इन यूनिवर्सिटी वालों से ये कहूँ, अरे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, इन पुरानी चीजों के अंदर $1 बिलियन छुपा हुआ है, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? वो हंसी। लोग क्या कहेंगे? मेरी बात मान रहे हैं? सर कहेंगे पागल है। हाँ जी, वो मुझे कहेंगे डॉक्टर साहब आप पागल हो गए। कहेंगे डॉक्टर सर इमरान खान वाली बात हो जाएगी फिर कि आप जो है ना वो पागल हो गए। आप पागल हो गए जनाब। तो जनाब पागल हो गए। अब हुआ क्या है कि ये कैसे हो गया? हमारा जितना पढ़ा लिखा आदमी है ना, अब्बास साहब आपको देख रहा हूँ मैं, अब्बास साहब को मौका देते हैं। अब्बास साहब नजर आ रहे थे मुझे, अब्बास साहब ने सर पे हाथ रखा हुआ है माशाल्लाह। अब्बास भाई, बाकी लोग म्यूट कर दें जी, इनको अनम्यूट कर दिया। अब्बास भाई इनको कैसे नजर आ गया यार? आप बोलेंगे या आगे चलो जी? नहीं फिर म्यूट हो गया। म्यूट है, बोलें। सर मैं बताऊं? अख्तर साहब बता देंगे। अब्बास साहब जरा थोड़ा सा जी। तौकीर आप बता दो, तौकीर बकर से आप बता दो। जी सर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सर आइडिया, फिर सर जरूरत उनकी जब पैदा हुई, फिर आइडिया आया, फिर उनके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स थे, उसके बाद उन्होंने प्लान किया, फिर उसे एग्जीक्यूट किया। इस तरह लोग मिलते गए। प्लान कब किया उसने? प्लान किया कोई? आमिर साहब प्लान किया इन्होंने? कहीं प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाया कहीं? नो सर, यानी कि उन्होंने जब वो बंदा उसके पास आया तो फिर उसके बाद तो उन्होंने प्लान किया होगा ना, जिससे वो लकड़ियां या वो चीज जो बाहर से बंदा आया था वो बम लेने के। उसने तो प्लान नहीं किया बच्चे। अच्छा चलें, थोड़ा सा किया था प्लान, थोड़ा सा किया था। ठीक है वो देखती गई उन्होंने जी सर। फिर उसके बाद जब उनका सर काम बढ़ता गया तो सर फिर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और एक न एक दिन फिर वो सर $8,000 जो आप बता रहे हैं, उन्होंने $80,000 अर्न कर लिया, और फिर उनकी कंपनी आज तक काम कर रही है। और सबसे ज्यादा क्वालिटी पे उन्होंने जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अपनी क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखा, जिसकी वजह से वो कामयाब हुई। आमिर साहब ये देखें, आमिर भाई आप किस शहर से बैठे हैं जनाब? आमिर साहब WMIR, आमिर साहब किस शहर से हैं? सर मेरा ख्याल है उनकी जर्नी स्पॉन्टेनियस थी, जिसमें प्लानिंग नहीं थी कोई भी ज्यादा।
स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड लफ्ज जनाब, थैंक यू। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। मैं कोयटा से बात। माशाल्लाह। तो आमिर साहब को जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अगर हम इनकी कामयाबी का राज देखें, ज़ैनी साहिबा, अब्बास साहब और आमिर साहब, वो कहती हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये था, नंबर 1 पॉइंट पता क्या है? आई हैड नथिंग टू लूज। मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो क्या करूंगी फराज साहबा, क्या करेंगी? झील से पानी पी लेंगी। लकड़ियाँ, आग नहीं होगी तो जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे। और मतलब उनके पास कोई बहाना ही नहीं है। वो कहती हैं कि हालांकि रहती कहाँ पर है? अफ्रीका में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? ये बॉस्टन में रहती हैं भाई, MIT के पास, हार्वर्ड के पास, वहां से 200 किलोमीटर होगा। ये अमेरिका के तहजीब और वतन में रहती हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। तो वो कहती मेरे पास कोई, रॉक्सिन कुंबी ये कहती हैं, अरे दुनिया के इंसानों, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को मेहनत और मुशक्कत का आदी बना के रखना, अपने आप को कंफर्ट जोन का आदी मत बनाना, और तुम्हारे पास खोने के लिए कम से कम होना चाहिए। दूसरा असूल क्या है? अरे कर्जा मत लेना और बैंकों के पास मत जाना, क्योंकि अगर बैंकों के पास जाते हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सर उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना, और क्या होगा? और मसला होगा उसमें कोई ना कोई चीज रखवानी भी पड़ती है, लाइक हमें बैंक को कुछ देना भी पड़ता है वैल्यूएबल, तभी वो लोन देता है। सच वैसे लोन प्रोवाइड भी नहीं करता। और क्या मसला होगा? और क्या मसला होगा? सर बेबरकती होगी क्योंकि वो सूद है। वो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर जब कारोबार करेंगे तो उससे लॉस आएगा, लॉस आने की वजह से फिर वो जो चीज होगी वो फिर खत्म हो सकती है। इसलिए आपके पास कुछ जब खोने नहीं होगा खोने के लिए, तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरवेंशन होगी सर। आप होगा ये कि बैंक से जब आप लोन लेंगे तो आप अपनी लिबर्टी जो है वो भी बैंक लिबर्टी, आजादी खो जाएगी। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट की वजह से वो सूद होगा और उससे बेबरकती होगी। ठीक, माशाल्लाह। एक्सटर्नल इंटरवेंशन भी होगी सर, जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन जी, फ्रीडम खो देंगे। ठीक है जी जनाब, अब रुक जाएं, ठहर जाएं। इसमें प्यारे साथियों एक और मसला भी होगा। सारी बातें ठीक है, अगर पैसे मिल भी गए ना तो आपकी तवज्जो काम से हट जाएगी और आप डेकोरेशन और सहूलतों के चक्कर में पड़ जाएंगे। दफ्तर सजाना, लैपटॉप लेना, आप उन चक्करों में पड़ जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि असल चीज काम पे तवज्जो देनी है। तीसरी चीज है कैलकुलेटेड रिस्क, चादर देकर पाँव फैलाना। रुखसाना साहबा कहती हैं जब भी पाँव फैलाओ चादर दे के पाँव फैलाओ। वो अगला पॉइंट कहती हैं ट्रीट अदर्स एज यू लाइक टू बी ट्रीटेड, अपने मुलाजमों के साथ वो सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। आगे वो कहती हैं जो फालतू चीजें इर्द गिर्द पड़ी हुई है ना उनको क्रिएटिवली इस्तेमाल करो। और आखिरी चीज वो ये कहती हैं कि जनाब अल्लाह ताला जब तुम्हें कुछ दे तो वो खुदा ताला के रास्ते में और मुआशरे को वापस लौटाओ और सदका करो और वापस लौटाओ। तो जनाब ये जो 6 असूल हैं, मैंने MBA भी किया, अंडरग्रेड भी किया, PhD भी की, मैनेजमेंट की किताबें काफ़ी पढ़ी हैं, तो मुझे तो ये नज़र ही नहीं आते असूल लिखे हुए कहीं। आप लोगों ने पढ़े किसी ने BBA MBA में ये असूल? नो सर, नो सर। गोल्डन रूल पढ़ा है हमने, गोल्डन रूल पढ़ा है इसमें, ट्रीट अदर एज यू लाइक टू बी। सर ट्रीट अदर एज यू लाइक टू बी ट्रीटेड। ये कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा है बच्चे? नो सर, BBA में कर रही हूँ तो मैंने इसी सेमेस्टर में पढ़ा जो ऑनलाइन का। बिजनेस कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन के कोर्स में। चले माशाल्लाह, वेरी गुड। सर कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसी चीजें हैं, बाकी मैनेजमेंट की बुक में नहीं है सर। कुछ पढ़े हैं सर इसमें से। सर रिस्क का जिक्र है फिर मैनेजमेंट में, रिस्क का, और ये सर बैंक्स के अलावा तो उसमें बात भी नहीं होती। तो जनाब ये चीजें तो माँ की गोद में सीखनी चाहिए थी ना बच्चों, ये चीजें तो माँ की गोद में होनी चाहिए थी, स्कूल में, कॉलेज में, FSC में, PhD में। तो ये क्यों नहीं है? ये कहाँ लिखी हुई हैं? ये पता सर ये ना तो किसी सर ये वक्त अगर और कोई हालात गलती से ये चीजें पढ़ा भी देता है तो वो इस तरीके से पढ़ाता है कि
हम इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। सर एक्चुअली ये किसी बुक्स में नहीं है, ये सिर्फ हमें बीइंग अ मुस्लिम जो है वो कुरान और हदीस से मिल जाती हैं जैसे, लेकिन अगर हम मोस्ट प्रॉब्ली फॉलो करते नहीं है। बाकी जो हम बीबीए एमबीए पढ़ रहे होते हैं ना तो उन बुक्स में होती है ना हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोई चीजें हमें सिखाई जाती हैं। जनाब ये कुरान पाक भी एक किताब है और हदीस भी एक किताब है उस, और ये पता कहाँ लिखी हुई है? इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, अरे ये है पहली किताबों में, सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किताबों में भी ये लिखा हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी ये लिखा हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी में भी ये है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब में भी ये लिखा है और अरे इवन हिंदुओं के किताबों में भी ये लिखा है। अरे पढ़ो तो सही, गोरों की किताबों को जान छोड़ो यार, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी दुनिया है। तो जनाब ये मैं नहीं कह रहा, ये गोरा कह रहा है, ये रॉक्सन गुम भी कह रही है, रुखसाना बाजी ये कह रही है पुकार पुकार कर, अरे अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो ऐसी जिंदगी गुजारो जो खोने वाली, जिसमें कम से कम खोना हो, जिसमें हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, और मत लो सूद पे कर्जे, और छोटे छोटे काम करो और खिदमत करो। और मेरे प्यारे साथियों, तो जनाब यहाँ पर आज आपसे ये एक सवाल रह गया जनाब कि ये रॉक्सन कुंबी साहबा यहाँ पैदा हुई, ये रॉक्सन साहबा यहाँ पैदा हुई, फिर बड़ी हो गई और उसके बाद वो जनाब जंग चली गई, उनकी शादी हो गई और उनके 2 बच्चे हो गए और उसके बाद हट बन गई, फिर टेंट में चली गई, फिर जनाब वैक्स बनी, फिर लिप बाम बनी, फिर बहुत सारे डॉलर्स बनाए, बाबा जी मिल गए उनको यहाँ पे। तो अब बताएं ज़ैनिश साहिबा, कैन वी प्लान दिस स्टोरी? क्या इस कहानी को मैं प्लान कर सकता हूँ कि मैं पहले पैदा हुई, मेरी 2 बहन थी, उसके बाद फिर कॉलेज जाऊंगी, फिर मेरे शादी हो जाएगी, फिर तलाक होगी, उसके बाद फिर बच्चों को लेकर मैं निकलूंगी, टेंट बनाऊंगी, फिर मैं एक दिन कैंडल बना लूंगी, जब कैंडल बन जाएगी तो फिर मैं बच्चों के कपड़े सिया करूंगी, उसके बाद मैं फिर लिप बाम बनाऊंगी, फिर डॉलर बनाऊंगी, फिर कारखाना लगाऊंगी। इसको प्लान किया जा सकता है बखर से? सर अगर इस एक्सपीरियंस से देखा जाए तो ये जो इसका जो एक लाइफ साइकिल था वो अनप्लान्ड था, लेकिन अगर हम एक चीज प्लान करते हैं, जैसे इफ वी फॉलो अवर टाइम टेबल, वी हैव स्केड्यूल फॉर आवरसेल्व्स, देन हम कहते हैं कि हम इस टाइम पे ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगता है कि इस स्टोरी के मुताबिक जो अनप्लान जो स्टोरीज होती हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि रॉक्सैन जो थी उन्होंने भी तो ये प्लान नहीं किया था कि वो ये अपने लाइफ में ये सब कुछ करेंगी। तो फिर तो इससे हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि एनीथिंग व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ इज अनप्लान्ड, एंड इफ अ पर्सन do something unplanned, so he or she is successful. राबिया साहबा कराची से कुछ कहना चाह रही है, इसका जवाब मिलेगा बेटा जन्नत से। यस सर, मेरे ख्याल में जो चीज हम प्लान करते हैं ना, अगर हम प्लान कोई चीज तो हम सिर्फ उसी प्लान पे चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर अगर हम कोई चीज प्लान करते हैं ना तो हम उसी चीज पे ही चलते रहते हैं। जैसे कि हम आपने हॉर्स की एग्जांपल दी, लेकिन जब हमारे पास चीजें अनप्लान होती है तो हम हर चीज पे नजर रखते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, जब नई नई चीजें आती हैं तो हम यूं कर सकते हैं। आमना साहबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये कहना था कि हम प्लान तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ अनप्लान होता है, लेकिन ये होता है कि जिस तरह लाइफ को हमें लेके चलना होता है कि अनसर्टेनिटीज भी आ सकती हैं, उसमें हमें किस तरह से एडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अक्सर हम उन लोगों से मिलते हैं वो अपनी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ हुआ तो फिर उसी चीज को खुरेदते रहेंगे। तो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, हम हर चीज को, इसीलिए फिर ये होता है कि प्लान अनप्लान चीजें भी हमारे लिए वर्कआउट कर जाती हैं, मतलब प्लान करते रहेंगे तो। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात की। सुसान काज़मी साहब बावलपुर से बोलते हैं, उसके बाद मुबश्शिर, फिर शुमाला नाज। बहुत प्यारी बात की हमारी बेटी ने कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें। सुसान काज़मी साहबा जी सर, छोटी सी बात सर कि अगर आप ना राइट टाइम पे अपने जो नोशंस है ना उनको आप डायरेक्शन दे देना तो फिर आप एक लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके नोशंस को एक प्रॉपर टाइम पे डायरेक्शन नहीं मिलती ना तो फिर वो वहीं पे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात, थैंक यू।
मुबशिर अहमद साहब इस्लामाबाद से। सर इसमें एक तो पॉइंट ये था कि आमना ने क्लियर कर दिया कि प्लान जब करते हैं तो फिर हम उसको उससे हटना नहीं चाहते, हम उसी पे चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिडवे में इशू आता है तो हम उसी पे फिर भी चलते रहते हैं, हम अपने माइंड को मीन्स को रीराइट नहीं कर सकते। एंड सेकंड उसमें ये था कि जब हम ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं तो हम खुद ही उसमें से बाय द टाइम ड्रॉबैक शुरू करने से पहले ही ड्रॉबैक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मोस्टली प्लान हमारे कंप्लीट हो भी नहीं सकते, वो ज्यादातर प्लान वैसे ही रह जाते हैं कि हम खुद ही उसमें। जज़ाकल्लाह। शुमाइला नाज साहिबा सिंध से। जी सर, इसमें ये था कि जो चीजें हम प्लान करते हैं फिर बंदा या बंदी जो भी होती है वो इतना क्यूरियस नहीं रहता अपने गोल के हिसाब से कि एक चीज प्लान हमें पता है कि हमें ये करना है वो करना है। जो चीजें प्लान नहीं होती उसमें बंदा क्यूरियस रहता है, देखता रहता है कि चीजें क्या हो रही हैं, बहुत इंटरेस्ट लेता है, इसी सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरल पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि इफेक्चुअल बंदा इफेक्चुअल के हिसाब से चले तो ठीक रहेगा। ओह माशाल्लाह, आपने पढ़ भी लिया इफेक्चुएशन, वंडरफुल, थैंक यू। गजाला साहिबा खुशदार से क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं यही कहना चाह रही थी कि इंसान को अपना एक गोल बनाना चाहिए, एक टारगेट बनाना चाहिए, तभी वो उसी टारगेट पे काम करता जाएगा। क्योंकि अगर इंसान अपना टारगेट ही नहीं बनाएगा तो फिर वो एक ही काम में नहीं लगा रहेगा, उसका जहन हर चीज में उलझा रहेगा कि मुझे क्या लेकिन करना है, बच्ची क्या अगर नहीं वो करना है। टारगेट के आगे पहाड़ आ जाए और वो पहाड़ टूटे ही ना तो फिर क्या करें? नो सर, इंसान कोशिश करे, कोशिश से इंसान को हर चीज मिल सकता है, कोशिश हो हर चीज जाएगी। पहाड़ जी सर, यानी हर पहाड़ चीज टूट मिल जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा कभी ना कभी। ओके सर मेहनत, जी सर मेहनत से टूट जाएगा वो पहाड़। अच्छा तो चले आप जज़ाकल्लाह, कभी कभी हो भी सकता है वैसे। हसन साहब जी, मोहम्मद हसन साहब पंजाब से, ये कुछ कहना चाहें लास्ट कमेंट, उसके जी बाद सर, फिर हम वो आगे चलें। बात सर ठीक है कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी जो है उसको अकोमोडेट करना चाहिए बिजनेस में, लेकिन सर वो भी तो एक मैक्सिम है ना कि वो कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल, उसके बारे में फिर क्या है? ओके जनाब, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा पूरा टॉपिक ही ये होगा और मैं हल्का सा खुलासा ये कर देता हूँ। अल्लाह ताला पता क्या कहते हैं, वमा करू यू प्लान, वमा करू वमा कर अल्लाह, यू प्लान एंड आई प्लान, वल्लाहु खैरुल माकिरीन एंड माय प्लानिंग इज द बेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें प्लान करना है, लेकिन हमारा प्लान टूटने के लिए बनता है। हमारे जितने भी प्लान है ना इंसानों के, आप जो मर्जी प्लान बना लें ऐसा होना ही नहीं है। आप जो मर्जी कर लेना उसके आगे पीछे चीजें होंगी। एग्जैक्ट प्लान दुनिया में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को डिजाइन ऐसा किया नहीं है। बिल क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी हो दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी भी ज़ाहिरी तौर पर ये कहे कि कल के दिन मैंने ये फलां 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 काम करके सोना है, तो इंशाल्लाह करके दिखा दे। वो कहे ना कि कल मैंने 10 काम करने हैं और ये फलां मीटिंग्स करनी है, एग्जैक्ट टाइमिंग डिफाइन कर दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने प्लानिंग नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग करेंगे लेकिन हम ओपन रहेंगे चेंजेस के लिए। कोई पहाड़ आ जाएगा रास्ते में, दरिया आ जाएगा, तो हम वहां पर रोना पीटना नहीं शुरू कर देंगे, वहां पर हम मरेंगे, रोएंगे नहीं, हम गौर करेंगे, तदब्बुर करेंगे। और ये देखिए ना रॉक्सैन कुंबी साहिबा की कहानी, इस कहानी को कैसे प्लान किया जा सकता है, मुझे बताओ बच्चों। आप प्लान कर सकते हैं कि बाबा जी बर्ट साहब का क्या रोल था, बाबा जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस कहानी में। बाबा जी का जो मिलना था उससे एक नया रास्ता खुल गया। उस रास्ते के नतीजे में मैं आपको थोड़ा सा, 5 मिनट है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये मेरे प्यारे साथियों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इंसान जो है ना वो बहुत छोटी चीज है। अब मैं अब देखे ना, ये इस बाबा जी का मिलने से क्या हुआ, इस बाबा जी से मिलने से वैक्स का ढेर नजर आया, वैक्स के ढेर के अंदर से कैंडल मिल गई, कैंडल बेचने गई बाजार में तो वहां बच्चों के कपड़े बिक रहे थे, बच्चों के कपड़ों का आइडिया आ गया, बच्चों के कपड़ों का आइडिया आया, सिलाई मशीन खरीदने का आया, सिलाई मशीन खरीदने का आया, वो गांव की औरतों से बातचीत हो गई, गांव की औरतों से दोस्ती हो गई, कपड़े सिल गए, बिक गए, और सर्दियां आई, होंठ फटे हुए थे, हाँ होंठ को हाथ लगा और उससे वो आइडिया आ गया। तो इसका मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों, आदमी कुछ प्लानिंग करे जितनी उसके बस में है,
जितनी उसके बस में है उसकी प्लानिंग करे, जितनी उसके कंट्रोल में उसकी प्लानिंग करे, और वो सरप्राइजेस के लिए तैयार रहे। जिंदगी में सरप्राइजेस आएंगे, जिंदगी में अचानक चीजें होंगी, जिंदगी में कोई बाबा जी मिलेंगे, जिंदगी में कोई मासी औरत मिलेगी, कोई बहन भाई रिश्तेदार दोस्त, कोई एक्सीडेंट, कोई वाकया, कोई ख्वाब, कोई टेलीफोन, कोई होगा। 1992 में मैं फैसलाबाद में था, मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा शाहिद साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप वापडा में जॉब करते हैं, आपकी तो प्रमोशन नहीं होगी, आप इस तरह करें, एक यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की, आप उसमें अप्लाई कर दें, उसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब एक आदमी ने मुझसे 5 मिनट बात की, 5 मिनट की बात करने के अंदर ख्वाजा अदनान साहब एक दुनिया जहान बदल गया। मैंने वो उसके कहने पर वो एड्रेस नोट किया, मैंने उनको खत लिखा, उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, उनका ब्रोशर आया, एप्लीकेशन फॉर्म आया, मैंने वो एप्लीकेशन जमा कराई। 6 महीने के बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, और फिर 2 महीने के बाद मुझे लेटर मिला कि डॉक्टर शाहिद साहब आपका दाखिला थाईलैंड में हो गया है, आपको स्कॉलरशिप मिल गया है। मैं थाईलैंड चला गया, वहाँ मेरे नए दोस्त बने, नई चीज़ें सीखी, नया नॉलेज लिया, और 2 साल के बाद जब मैं वापस आया तो उस डिग्री की बुनियाद पर मैं अपने पुराने डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अचानक एक दिन जंग अखबार में इश्तिहार आया, जंग अखबार में कोट अद्दू वाले लोग हैं, जंग अखबार में इश्तिहार आया कि कोट अद्दू पावर कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर चाहिए जिसने मास्टर्स किया हुआ हो। जो मैंने थाईलैंड में चीजें सीखी थी ना वो उसमें लिखी हुई थी। अब मैंने वो अप्लाई किया, मुझे वहां पर जॉब मिल गई। ये कहानी लंबी कहानी है। तो मेरे भाइयों ये बताओ बच्चों, ये मैंने प्लान किया था कि मुझे बंदा मिलेगा? मैंने ये प्लान किया था ये मुझे बंदा मिलेगा? नो सर। किसने किया? किसने मुलाकात कराई? अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने। सुनो, यजअल लहू मखरजा, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं हम उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उनको ऐसी जगह से रोजी देते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकते। मेरे बस में जो प्लान था वो मैं करूंगी। उसके बाद मैं सरप्राइजेस के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए और मौके के लिए अपने आप को ओपन कर दूंगी। ठीक है, ये आज का लेसन है। तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज क्या सिखाते हैं? वो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और उनको ये कहते हैं कैरियर काउंसलिंग करो, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। ये इसको कैसे ख्वाब आ गया कि आप, इसको ख्वाब आ गया इंजीनियर बनेगा, इसको कैसे ख्वाब आया डॉक्टर बनेगा? मेरे बच्चों हफ्ता बताओ, मैं तो इंजीनियर था, 12 साल इंजीनियरिंग की, अभी तो मैं मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि जनाब मैं तो इंजीनियरिंग बनने गया था, यूआईटी लाहौर में 4 साल पढ़ा, फिर उसके बाद 2 साल एमएससी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने वापडा में 5 साल काम किया, 7 साल वापडा में काम किया, 5 साल कोट अद्दू में काम किया। इतना पढ़ने के बाद आदमी कैरियर चेंज करता है? बताओ मुझे। प्लानिंग तो यहाँ की थी सर, हम होते तो नहीं करते। या इंसानों, तुम बड़े छोटे हो, फने खां बनते हो ना, एक दिन भी प्लान नहीं कर सकता कोई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं प्लान, हम प्लान करेंगे। Sir, what is the difference between business and entrepreneur? तो बेटा इतने मुश्किल सवाल कर रहे हो, ये दोनों करीब चीजें, और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीजें। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि थोड़ी चीजों से, क्रिएटिविटी से, थोड़े असबाब से, और परसुइंग एन अपॉर्चुनिटी विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कम से कम मेमनपन, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और बिजनेस, यूनिलीवर, शेल, उसको बिजनेस भी कहते हैं, करियाने की दुकान को भी बिजनेस कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं
जद्दोजहद, सादगी, आजी, इंकसारी, मोहब्बत, क्रिएटिविटी से काम ज्यादा करता है।